Hi friends, today we shall be doing singular number and plural number. Okay, तो आज हम करेंगे singular number और plural number. It will be very simple, very easy, and we just have to focus on some rules of this singular and plural. Let's first of all know what is a singular number. Noun denoting one person, place और thing. तो हम जब भी किसी एक चीज़, एक जगह या एक इंसान के बारे में बात करें तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर. वी टॉकिंग अबाउट इज सिंगुलर नंबर. ओके, नाउ सिंगुलर नंबर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नंबर. बैग, चाइल्ड, फूट, ऑक्स. ओके, प्लूरल नंबर, नाउन डिनोटिंग टू और मोर पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल बैट्स, चिल्ड्रन, फीट, ऑक्सन. प्लूरल नंबर होता है जब हम 2, 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर. एग्जाम्पल है बैट्स, चिल्ड्रन, फीट, ऑक्सन. ओके, प्लूरल्स कैन बी मेड इन सेवरल वेज. तो सिंगुलर को प्लूरल बनाने का बहुत से तरीके होते हैं. तो हम इस तरीक़ों को एक एक करके देखेंगे. यहाँ पे कुछ तरीके मैंने दिए हैं, कुछ और भी तरीके हैं. तो यहाँ पे रूल्स, विल सी द रूल्स what are they, and they are very simple. I have given examples of all of them. You can see here. By adding s to singular form, some examples. So what we are doing basically is we have a singular form, we just add s in the end and we make them a plural form. Okay, let's see. Pupil, pupils. Envelope, envelopes. House, houses. Okay, here there is no particular rule. You just add s in the end, you get a plural form. Okay, boy, boys, like that. Second rule, by adding es to singular forms. Here we'll be adding es to the singular form, but there is a rule about it, that is the noun should add with ch, s, sh, xx, ss, x and z. Okay, so here the noun, the word should be ending with all these things: ch, s, sh, x, ss, x and z. Let's see the examples, it will be more clear. Latch, latches. Gas, gases. Dish, dishes. Glass, glasses. Fox, foxes. Quiz, quizzes. Brush, brushes. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंड में है उसमें, एंड में जो रेड कलर में देखिए उसका एंडिंग कैसे हो रहा है, सी एच से हो रहा है, एस से हो रहा है, एस एस से हो रहा है, एस एच से हो रहा है, एक्स से हो रहा है, जेड से हो रहा है. ठीक है, तो अगर वर्ड्स इन सब चीज़ों से एंडिंग होता है तो उसमें हम ई एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म बनता है. थर्ड वाला टेक्निक देखते हैं. थर्ड रूल, रिप्लेस वाई विथ आई एस. what we'll do here is we'll replace the y at the end of the word with ies. Okay, so but there is a rule, nouns end with y after a consonant. The y should come after a consonant. What is the consonant? Consonant are those alphabets except for a e i o u. a e i o u को छोड़ के जो सब अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो अगर y कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो y के बदले हम लगाएंगे आई ई एस. ओके, let's see the examples. Army, armies. Fairy, fairies. Baby, babies. Victory, victories. Here we can see y is coming after MRB. So MRB क्या है? MRB है हमारे consonants. Okay, तो इसीलिए हम लोग प्लूरल फॉर्म में y के बदले लिख रहे हैं IES. Replace y with s. What we'll do here is we'll just replace y with s. Okay, y with s. Let's see the rules. Now end with y after a vowel. Here y should come after a vowel, that means y should come after a e i o u. Okay, any of them. Some examples: babies, monkey, monkeys, asses, guy, guys. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y कहाँ पे आ रहा है, y आ रहा है एक वावल के बाद. a e u है यहाँ पे एग्जाम्पल्स में. i o के बाद भी अगर आता है y तो हम लोग y को रिप्लेस नहीं करेंगे आई एस से, बल्कि y के बाद हम s लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बना लेंगे. ओके, फिफ्थ रूल, नाउन एंडिंग विथ f and fe changes into vs. if the noun is ending with f and fe, we replace the f and fe with ves. ओके, तो अगर नाउन जो है, जो वर्ड है हमारा, वो अगर f या fe से ख़त्म हो रहा है तो हम उसके f और fe के बदले लगाएंगे ves. जैसे कि कफ, कव्स, नाइफ, नाइव्स. ओके, इस तरीके से ये वर्ड चेंज होता है. सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनको हम देखते हैं. ओके, बिलीफ, बिलीफ्स. ड्वर्फ, ड्वर्फ्स. रूफ, रूफ्स.
cliff cliffs, proof proofs, chief chiefs, relief reliefs, handkerchief handkerchiefs. What is happening here is that जैसे हमने previous rule में पढ़ा था कि f के बदले हम VES लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम f के बाद में हम लोग s लगा दे रहे हैं, ओके। f के बदले f के बाद s लगा दे रहे हैं, सो इसीलिए इसको एक्सेप्शन भी कहा जा रहा है। नाउ लेट्स सी डबल प्लूरल, ओके। तो किसी किसी वर्ड का दो प्लूरल फॉर्म हो सकता है, मतलब हम ज़्यादा है तो हम दो तरीके से भी बोल सकते हैं। देखते हैं क्या क्या है वो। स्कार्फ स्कार्फ्स स्कार्फ्स, स्टाफ स्टाफ्स स्टाफ्स, वर्फ वर्फ्स वर्फ्स, हूफ हूफ्स हूव्स, ओके। नाउन एंडिंग विथ ओ फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ES। तो जो नाउन ओ से एंड होता है उसका प्लूरल बनता है ES डाल के। लेट्स सी व्हाट आर दे। बफलो बफलोज, कार्गो कार्गोज, हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज। हियर व्हाट इज हैपनिंग, ओ वी आर एडिंग विथ ES। ओ से ख़त्म हो रहा है वर्ड, इसलिए हम ओ के बाद ES ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बना रहे। कार्गो का कार्गोज, हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगोज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेन वर्ड्स एंडिंग विथ ओ हैव प्लूरल बाय जस्ट एडिंग S। तो कुछ फॉरेन वर्ड्स होते, फॉरेन वर्ड्स मतलब जो इंग्लिश वर्ड्स नहीं होते, जो हम दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स से लेते हैं। द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देन वी यूज इट एज इंग्लिश वर्ड्स, बट इन इंग्लिश देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड फॉर दोस, ओके। So in those what we do is that we just add S after that O and we get a plural form. Let's see the words. Bamboo bamboos, rhino rhinos, fiasco fiascos, folio folios, piano pianos, hello hellos, radio radios, okay। O के जगह ES नहीं लगता, O के बाद ES नहीं लगता, O के बाद क्या लग रहा है, S लग रहा है, because these are foreign words. Next let's see. Some noun form their plural by change of vowels or by adding N, EN, REN. So there are some noun which change the vowel part in it and also by adding N, EN और REN, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। Child children, food feet, louse lice, man men, ox oxen, goose geese, tooth teeth। यहाँ पे क्या हो रहा है, child के बाद हम REN लगा के children बना दे रहे। Foot, the vowel part is OO, we change it into EE, feet। Louse, the vowel part is O, तो उसको हम I से बदल दिए, US को हम C से बदल दिए। मैन में वावल है A, उसको हमने E से बदल दिया, ठीक है। ऑक्स में ऑक्सन ऐड कर दिया, गूज में OO को EE कर दिया। इसी तरीके से हमने इसका प्लूरल फॉर्म बना लिया, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज होता है, एंड देयर आर सम प्रोनाउंस आल्सो व्हिच एंडिंग विथ सेल्फ एंड चेंजिंग टू SELVES, सेल्व्स, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाया, राम इज़ ए गुड बॉय, उसके बाद वाले सेंटेंस में हम लिखा राम गोज टू स्कूल एवरी डे। तो हम कैसे लिखेंगे प्रोनाउन में, विल राइट इट एज राम इज़ ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। बार बार राम ना लिख के हम राम के बदले ही यूज़ कर सकते। तो अगर लड़की है तो शी यूज़ कर सकते, किसी चीज़ के बारे में बात करें इट यूज़ कर सकते हैं, ओके। So this way we can replace a boy name with he, girl name with she, and then thing with it, okay. So let's see how these kind of things have plural form. I, if it is I, will write we. He, she, it, they. Mine, ours. Me, us. Him, her. Him या her होने से them में change होता था। These, that, those, okay. नाउ सेल्फ पे आते हैं। माई सेल्फ, माई सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सम डज नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म। तो सम वर्ड्स आर देयर व्हिच डजंट चेंज एट ऑल इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म में होने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदलते, वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। जैसे कि डियर डियर, फिश फिश, फ्रूट फ्रूट, सीरीज सीरीज, शीप शीप, व्हीट व्हीट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते देर आर लॉट्स ऑफ फिशेस, हम कहेंगे देर आर लॉट ऑफ फिश इन द पॉन्ड। बास्केट ऑफ फ्रूट्स नहीं बोलना, बास्केट ऑफ फ्रूट बोलना है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट वन। चेंज नाउन पार्ट ओनली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसका नाउन पार्ट बदलेंगे, बाकी जो पार्ट है वो सेम रहेगा, ओके। लेट्स सी दिस वन। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में नाउन पार्ट क्या है, ब्रदर। तो ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा जी, ओके। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। पसर बाय, पासर्स बाय।
फुटमैन, फुटमैन, यहाँ पे फूड भी नाउन है, मैन भी नाउन है, ओके। लेकिन हम फूड को सेम रखेंगे और मैन में मेन कर देंगे, MEN। ये हमने पहले भी पढ़ा था, मैन का प्लूरल फॉर्म होता है EN, MEN, मैन, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी प्लूरल्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रिविएशन। एब्रिविएशन जो होते हैं, कोई बड़ा वर्ड होता है उसका हम छोटा जब बनाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको हम कैसे लिखते हैं, USA। तो ये हुआ USA एब्रिविएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनके प्लूरल्स कैसे बनते हैं देखते हैं। BA, BAs, तो BA के बाद एप्रोस्ट्रोफी डाल के S, ये कॉमा नहीं होता है, एप्रोस्ट्रोफी होता है, ओके। MLA, MLAs। नेक्स्ट वन plurals of titles. Titles means when you are addressing someone, then we add some name in front of them. If it is a young boy, we call him Mr. Young girl, we call them Miss. Married woman, we call them Mrs. And then married man, we call them Mr. Okay, this type of title. And titles of names also, like Singh, Malhotra, Chaudhary. Okay, these are also titles only. So let's see how this change into plural form. Mr, Messrs, Miss, Mrs, Mrs, Miss Dames, Mr. Sharma, the Sharmas. तो मिस्टर शर्मा द शर्मास ये कैसे होता है, हम अगर सिर्फ मिस्टर शर्मा से मिले हैं तो हम उनसे बात करें, हेलो मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू। लेकिन हम जब बोलेंगे कि पूरा शर्मा परिवार हमारे यहाँ खाने पे आने वाला है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, मिस शर्मा, मिस्टर शर्मा इज़ कमिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम ऐसे बोलेंगे द शर्माज आर कमिंग, ओके। दिस वे थिंग्स आर यूज इन प्लूरल फॉर्म, ओके। Let's go to the last one, foreign words. Again we have having foreign words. Previously also we studied some, but these are totally different. यहाँ पे s नहीं लगाना, यहाँ पे totally the word will change. यहाँ पे words change हो जाएंगे, okay? Locus, loci, medium, media, datum, data, oasis, oasis, radius, radii, syllabus, syllabi, formula, formulae, basis, basis, phenomenon, phenomena, focus, foci. Okay, this is how the foreign words change into plural form. Okay, thank you very much for listening to my whole video. If you really like it, please like, share and subscribe to my channel Fun Learn, and share it with your friends, with your family members, so that they can also understand singular and plural easily and very fast, and can also remember very properly. And please hit the bell icon so that you can get notification every time I post a new video. Thank you so much.